नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में मादिगा समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर पत्रकारों से बात। चिरगुप्पा तालुके के तालमड़गी ग्राम के पीकेपीएस के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव। माइक्रो फाइनेंसरों को आरबीआई के मानदंडों का पालन करने के लिए कहे, केबीजी ने डीसी एसपी से कहा। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के आरोप में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। यमुना में गंदगी को लेकर सीएम योगी ने केजरीवाल पर बोला हमला। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में जेबीएस बीमारी पर हुई चर्चा, स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मडिगा दंडोरा मादिगा मिसलाती होराटा समिति द्वारा आज बीदर शहर के पत्रिका भवन में पत्रकारों से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष विजय कुमार हप्पलगांव ने पत्रकारों से बात करते हुए समाज के आरक्षण के संबंध में बात की। इस अवसर पर कमलापुर हेगड़े, जयश्री मेत्रे, पीटर चिरगुप्पा, शिवन्ना हप्पलगांव सहित अन्य आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1972ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ಯಾರ, ಅದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಬಟ್ ನಾವ್ಯಾರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಇವರು ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಯಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಲ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸವಲತ್ತುಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂತ ಈ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಈಗ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪದ, ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟಿದೊಳಗೆ ಅದಾರ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರು ಕೂಡ SC ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರು, MLA ಆದರು, ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಜಾರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಗಡುವು ಈಗ ಜನವರಿ 31. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು, 1-2-3 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಮಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಲಾರದೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 30 ತಾರೀಕು ಒಳಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾಣದೆ ಒಂದು ಕೈಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿ ಇದು ಮುಂದೂಡಬೇಕು, 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಳು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ತಪ್ಪು, ಅದು ಖಂಡನೀಯ. ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. 31ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಯವರು ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ನ್ಯಾಯ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ತುರ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. मादिगा दंडोरा मादिगा मीಸಲಾತಿ होराट समिति और से विजय कुमार हप्पलगांव और नेतृत्व के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हमारे समाज के मादिगा समाज से पत्रिका भवन में मीटिंग हुआ है। इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो अन्याय हो रहा है मादिगा समाज को, उस समाज को आज
सिद्धरामैया होंदे, कांग्रेस सरकार होंदे बहुत अन्याय कर रहा है। क्यों बोले तो हमारे समाज 30 साल से मंदाकृष्ण मादिगा के नेतृत्व में लड़ते आ रहा है समाज के लिए। मीಸಲಾತಿ आड़ी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो भी उसको भी नागमोहन दास का एक वर्दी के लिए सिद्धरामैया विलंब करे थे 2-3 महीने के लिए। फिर वो नागदास मोहन का वर्दी आने के बाद भी अभी बोल रहे अगस्त तक करते बोल के बोले तो इसमें एक बड़ा पीछे बड़ा लीडरों का कोई हाथ दिखता हमारे समाज के अन्याय करना बोल के उन लोग सोच रहे। क्यों बोले तो इतना 30-32 साल से कंटिन्यू लड़ते आ रहे समाज के लिए, फिर भी आज तक हमारे को मीಸಲಾತಿ नहीं मिल रहा। हरियाणा सरकार खाली 2 महीने में उनका सरकार होने के बाद बीजेपी सरकार वाले वहाँ पे हरियाणा में मौला मीಸಲಾತಿ जारी करते। इधर करने के लिए इनको तकलीफ हो रहा। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वोटिंग मादिगा समाज का है, ये मालूम होना चाहिए सरकार को। फिर इतना रहने के बाद इस बार सरकार कांग्रेस सरकार को पूरा हमारे लोग सपोर्ट कर कांग्रेस सरकार बनाने में बहुत ये करे है। और इतना करने के बाद भी इस सरकार हमारे को मलताई दौड़ना कर रहा है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 31 तारीख यही जो जनवरी ख़त्म होने के बाद जो फरवरी आता है, जब तक उन्होंने नहीं करे तो हम लोग रोड के ऊपर उतर कर हमारे समाज वाले पूरे मिलकर हर जगह, हर जिला में, हर तालुका में, हर गांव में हम स्ट्राइक करते बोल के आपके केपी न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ। जयशील मैत्री। चिटगुप्पा तालुके के तालमड़गी ग्राम के पीकेपीएस के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव हुए। इस चुनाव में उमेश कुलकर्णी अध्यक्ष और रवि हावशेट्टी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। चुनाव अधिकारी शिवाजी हंगरगी ने कहा कि अध्यक्ष के लिए मात्र एक ही नामांकन दायर किया गया था, जिससे निर्विरोध अध्यक्ष को चुना गया। चुनाव के नतीजों की घोषणा के साथ ही समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। पटाखे फोड़ने और मिठाई का वितरण का सिलसिला भी लगा रहा। इस अवसर पर पीकेपीएस के निर्देशक अशोक रविन्द्र, विजय कुमार, कस्तूरबाई, चंद्रकला बाई, वीर शेट्टी, लक्ष्मण महबूब खान पटेल सहित अन्य उपस्थित रहे। सैयद अजीम की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ತಾಳಮಣಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ। ತಾವು ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 12 ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 12ಕ್ಕೆ 12 ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು। ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಭಾಳ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಾ ರೈತರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಜಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪೌಡ್ಶೆಟ್ಟಿ ಇತರೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣ್ಯರಾಗಿ ಈ ವಿಜಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ಸರ್, ತಮ್ಮ ನೋಡಬೇಕು, ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। ಏನದೆ ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ। DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲು, ನಮ್ಮ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಮರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಏನಾದ್ರು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ। ನಾನು ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಊರಿನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಾಬುರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಶರೀಫ್ ಖಾನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹೈದರ್ ಖಾನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ। ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ನಮಗೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕೂಡ ಅವಿರೋದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದವರು ಇವ್ರ ನಮ್ಮ ರೂವಾರಿನೇ ಇವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ। ನಮಗೇನು ಜಿದ್ದ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಜಿದ್ದ ಏನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ। ನಾವು ಆರಾಮ್ ಸರಿ ವಿನ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನಿಸಿತ್ತು। ಆದರೆ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾರಣ, ಪೌಡ್ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲರ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಂದದ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने सोमवार को उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने जिलों में सूक्ष्म वित्त कंपनियों के साथ पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाए और उन्हें ऋण वसूली के लिए आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दोषी माइक्रो फाइनेंसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। गौड़ा ने कहा कि कई मामलों में फाइनेंसरों उधारकर्ताओं की चुकाने की क्षमता से पूरे ऋण देते हैं। उन्होंने 59,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। उन्होंने कहा इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है और कर्ज देते समय उधारकर्ताओं की क्षमता को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना हुई। मंत्री ने बताया कि आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार कोई माइक्रो फाइनेंसर 2 लाख रुपए से अधिक का कर्ज नहीं दे सकता है, लेकिन यहाँ वे 6 लाख रुपए तक का कर्ज दे सकते हैं। ऐसे मामले में जहाँ उन्होंने एक घर के लिए 3 से 4 लोगों को ऋण दिया है जो चुकाने की उनकी क्षमता से बहुत परे हैं, फाइनेंसर लोगों को कर्ज के जाल में धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा इस पर निगरानी रखनी होगी। डीसी और एसपी को माइक्रो फाइनेंसरों को सख्ती से चेतावनी देनी होगी। इसके अलावा गौड़ा ने कहा कि केंद्र ने डीसी को ऐसे ऋणदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं दिया। यही वजह है कि राज्य सरकार अब इस मुद्दे को अपने दायरे में लाने की योजना बना रही है ताकि उधारकर्ताओं की सुरक्षा हो सके और इस तरह के अवैध लेन देन और ऋण गतिविधियों पर नियंत्रण हो सके। लोकायुक्त पुलिस ने मंगलूर उत्तर यातायात पुलिस निरीक्षक मोहम्मद शरीफ और पुलिस कांस्टेबल प्रवीण नायक को अदालत के आदेश के अनुसार एक व्यक्ति का वाहन छोड़ने के लिए कथित तौर पर 3,000 रुपए की रिश्वत लेने और के आरोप में गिरफ्तार किया। अदालत के पुलिस हिरासत में रखे गए स्कूटर को छोड़ने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने स्कूटर को छोड़ाने के लिए इंस्पेक्टर मोहम्मद शरीफ से संपर्क किया। शरीफ ने स्कूटर को छोड़ने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब उनसे रिश्वत की रकम कम करने के लिए कहा गया तो उन्होंने शिकायतकर्ता को थाने में हेड कांस्टेबल नागरत्ना से मिलने को कहा। जब वह उनसे मिला तो उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ गाली गलौज की और 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत देने से इनकार करने पर उन्होंने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक के बेल्लारी जिला अस्पताल में कार्यरत एक शिशु रोग विशेषज्ञ का शनिवार को अपहरण कर लिया गया है और उसके भाई ने 6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पुलिस ने बताया है कि अपहरणकर्ताओं ने कुछ घंटों बाद डॉक्टर को रिहा कर दिया और घर लौटने के लिए 300 रुपए दिए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 45 वर्षीय डॉक्टर सुनील सुबह 6 बजे सूर्यनारायण पेट में शनेश्वर मंदिर के पास मॉर्निंग वॉक पर थे। तभी टाटा इंडिगो कार में सवार एक गिरोह आया, उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा लिया और भाग गया। पुलिस के अनुसार पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। डॉक्टर सुनील के भाई वेणुगोपाल गुप्ता को अपहरणकर्ताओं की ओर से व्हाट्सएप कॉल आया। गुप्ता को जो जिला शराब डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से 6 करोड़ रुपए की फिरौती और आधी रकम सोने के रूप में देने के कहा गया। गुप्ता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। तलाशी अभियान के तहत पुलिस ने जिले के सभी निकास मार्गों को बंद कर दिया, लेकिन रात करीब 8 बजे अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और उसे घर लौटने के लिए बस पकड़ने के लिए 300 रुपए दिए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मंगोलीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली आ रहा था, यमुना जी जो कभी हम सभी के लिए आस्था का प्रतीक थी, वहां से दुर्गंध आ रही है। यह तस्वीर जैसे दुर्गंध है, यह सीवर जैसे दुर्गंध है। जिन लोगों ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पाप झेले हैं, उन्हें जल्द ही पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार की पाप की भोगी हमारे मथुरा, वृंदावन और आगरा वासियों और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो 10 साल से जो स्थिति बनाई है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको पड़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता, संतों और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान किया, इसलिए ये आयोजन को प्रबंधन अव्यवस्था और अराजकता का शिकार हुए। लोग कुंभ में शामिल नहीं हो सके। डबल इंजन सरकार न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि उत्तर प्रदेश की विरासत को भी लाभ पहुंचा रही है। महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें जीबीसी को लेकर काफी गंभीरता से चर्चा हुई। इस बैठक को लेकर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुश्रीफ ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा एसओपी तैयार किया गया है। पुणे और सोलापुर में ही जीबीएस के मामले सामने आए हैं। दूषित पानी की वजह से जीबीएस बीमारी फैल रही है। इस बीमारी से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। केंद्र सरकार की टीम के साथ मिलकर राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। अधिकारियों द्वारा इसे लेकर कहा जा रहा है कि इस बीमारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि जीबीएस को रोकने के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। दूषित पानी की वजह से जीबीएस जैसी बीमारी होती है, यह संसर्गजन्य रोग नहीं है। सभी महानगर पालिकाओं सहित जिला परिषद स्तर पर भी साफ पानी की आपूर्ति को लेकर नियम बनाए जाएंगे। साफ पानी की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जीबीएस पुणे के एक हिस्से में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन अब वहां जीबीएस के मामले नहीं बढ़ रहे। यह कोई नई बीमारी नहीं है, यह पुरानी बीमारी है। आईपीएस अधिकारी राजेश निर्वाण को नई जिम्मेदारी मिल गई है। आईपीएस राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। राजेश निर्वाण राजस्थान कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे अमृत मोहन प्रसाद को रिप्लेस करेंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमृत मोहन प्रसाद नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। जारी किए गए लेटर में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री राजेश निर्वाण आईपीएस को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजेश निर्वाण 1952 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वे राजस्थान में होमगार्ड महानिदेशक के पद पर पोस्टेड थे। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी निर्वाण सीमा सुरक्षा बल में भी काम कर चुके हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के घोड़बंदर रोड परिसर स्थित हाइपर सिटी मॉल में मंगलवार अचानक आग लग गई। मॉल के दूसरे माले पर स्थित पूमा ब्रांड के आउटलेट में सुबह लगभग 7:50 पर अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि यह घटना सुबह के वक्त हुई और मॉल में कोई भी ग्राहक मौजूद नहीं था, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। ठाणे नगर निगम के आपदा विभाग को आग की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर टीम पहुंची। इसके अलावा कासरवडली पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अगर आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने एक पिकअप फायर गाड़ी, फायर ऑफिसर, एक रेस्क्यू गाड़ी और एक हाई राइज गाड़ी भेजी। आग बुझाने का कार्य जोरों शोरों से चला। यूपी के संभल में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज आधार पर पहचान कर आरोपी को जेल भेज रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर आरोपी सोहेल को गिरफ्तार किया। पुलिस अब तक 73 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपी को नखासा थाना क्षेत्र के खग्गूर सराय से गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। जयशंकर की यात्रा का मकसद यूएई जैसे प्रभावशाली खाड़ी देश के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाना है। इसी बीच विदेश मंत्री ने यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट किया। आज सुबह यूएई के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर मोहम्मद गर्गश से मिलकर अच्छा लगा। हमारी विशेष साझेदारी और इसकी आगे की प्रगति पर चर्चा हुई। जयशंकर ने द्विपक्षीय संबंधों की कुछ उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते ने व्यापक और निवेश को बढ़ाया है। स्थानीय मुद्रा, व्यापार, स्वास्थ्य, फिनटेक तंत्र उल्लेखनीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर बहुलाद, सद्भाव और सहिष्णुता के प्रतीक के रूप में उभरा। अमेरिका के जन स्वास्थ्य अधिकारियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ तत्काल प्रभाव से काम करना बंद करने को कहा गया है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र के अधिकारी जॉन केंगसोंग ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को एक ज्ञापन भेजा। इसमें कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी उनके साथ सहयोग तुरंत बंद करें और आगे के निर्देश की प्रतीक्षा करें। अमेरिका के इस कदम को लेकर विशेषज्ञों ने कहा है कि अचानक उठाया गया यह कदम आश्चर्यजनक है और इसे अफ्रीका में मार्बर्ग वायरस और मंकीपॉक्स के प्रकोप की रोकथाम और जांच के कामों में बाधा आएगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारी अमेरिका पशुओं में बर्ड फ्लू के प्रकोप पर नजर रख रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में मादिगा समाज द्वारा अपनी मांगों को लेकर पत्रकारों से बात। चिरगुप्पा तालुके के तालमड़गी ग्राम के PKPS के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव। माइक्रो फाइनेंसरों को RBI के मानदंडों का पालन करने के लिए कहे, KBG ने DC SP से कहा। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत के आरोप में ट्रैफिक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। यमुना में गंदगी को लेकर CM योगी ने केजरीवाल पर बोला हमला। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में JBS बीमारी पर हुई चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।